ड्यूरिंग द सेशन मेक श्योर कि आपके माइक्रोफोन्स जो हैं वो म्यूट रहें. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन जस्ट मेक श्योर कि आप हैंड रेस करें एंड आई विल जस्ट एड्रेस योर क्यूरी. ड्यूरिंग इस सेशन के दौरान इंटरप्शंस बार बार कोई चीज़ क्वेश्चनिंग करना, एकदम इंटरप्ट करना, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि सेशन अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो उसके अंदर जो इफेक्टिवनेस है वो पूरी हो कम्प्लीटली. सो इफ़ यू हैव जस्ट क्वेश्चन जस्ट रेज योर हैंड or you can just type it in your chat box. So we're just going to start the topic. Torsional stress, basically this topic is the first one after the midterm. और I hope so आप लोगों का जो midterm रहा that was a good one. I'll just make a quick poll here. I hope so you have a little poll on your screen. Just select what was the level of difficulty in your midterm exam. So most of the people they expect that the exam was easy, with few people tough. Okay, so the topic is torsional stress. Before I'll start this one and continue, I have already informed the CRs of both sections के अगर आपके किसी भी टॉपिक मिड से पहले जो टॉपिक्स रह गए हैं तो अगर उनमें से कोई चीज़ पेंडिंग रह गई है जस्ट लेट मी नो बाय एंड ऑफ टुडे. और मैं या तो उनके लिए सेपरेट सेशंस जो हैं उन्हीं टॉपिक्स के लिए डेडिकेटेड बना दूंगा. So we'll start with the topic torsional stress. Before the midterm, we have covered different types of stresses like normal stress. There was shear stress. Then we studied bearing stresses, temperature stresses, and so on. The different kinds of stresses जिनको हमने study किया. Then we also studied some behavior of springs. और फिर इसके बाद pressure vessels को हमने discuss किया. So after the midterm, this was the first topic. Torsional stress is very similar to other kind of stresses जो कि हमने पहले study की, like this is the shear stresses. Then there was again normal stresses. ठीक है, इस फिगर के अंदर बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये different types of stresses जो हमने study की, these have been covered here. So the first one, if you can see on the screen, is just this tension force. ठीक है जी, टेंसाइल, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर टेंशन फोर्स लगाते थे, it will produce normal tensile stresses. Then there was compression force. Again, this force is perpendicular to the cross section, so it will produce axial compressive stresses. इन ये दोनों टाइप्स नॉर्मल स्ट्रेसेस में आती थी. देन वी स्टडीड shear stresses. ठीक है जी, इन shear stresses की डिफरेंट आगे फर्दर टाइप्स है, सिंगल shear, डबल shears. The last figure that you see here on your screen is torsion. दिस इज बेसिकली कि जब आप किसी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, द ट्विस्टिंग फिनोमेना जस्ट उसके ऊपर अकर होता है, तो उसके अंदर जब रेजिस्टेंस डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल शीयर स्ट्रेसेस. ठीक हो गया जी. आई विल जस्ट फर्दर एक्सप्लेन इट हियर. यहाँ पर हम आगे आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर. ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सर्कुलर शाफ्ट है और लाइक रेक्टेंगुलर शाफ्ट भी इधर शो की सर्कुलर शाफ्ट. या आप इसके एक एंड को फिक्स रखें एंड apply a twisting moment at the other end. So जब दूसरे एंड से इसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे, इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, we classify them as torsional stresses. The formula for torsional shear stress is here, written at the bottom of your screen. We represent it with the same notation tau. जिस तरह आपके पास shear stresses थी, तो इसी तरह torsional shear stresses को हम represent करते हैं tau से. This is the symbol. ठीक हो गया जी. This one. And this depends upon a three factor TC over J. In this very similar way, जब आपने फ्लैग्यूरल स्ट्रेसेस पढ़ना स्टार्ट की थी इन बीम्स, जिस तरह मैं बताता था स्टार्टिंग में, अगर कोई बीम पड़ा है and you apply a load on this one, on the beam perpendicular to its longitudinal axis, this will try to bend your beam like this one. And once the beam is bent, so there will be some stresses, we call them as flexural stresses, sigma equal to mc or my over I. In the very similar way, if you have a circular shaft or rod like this one, and you apply a twisting torque or twisting moment at the ends of this circular shaft, you will see that the bar will experience a torsion shear stress, which is represented by tau. And this depends upon three factor TC over J, where T is the applied twisting moment. The more you apply द ट्विस्टिंग टॉर्क, जितना टॉर्क उस बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे उतनी ही उसके अंदर वो स्ट्रेसेस क्या होंगी, ज़्यादा डेवलप होंगी. जिस तरह इसके अंदर भी था फ्लेक्सर स्ट्रेसेस के अंदर, दैट दिस वाज डिपेंडिंग अपॉन अप्लाइड मोमेंट्स. मोर द अप्लाइड मोमेंट, और मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहे थे, इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द
loading condition. The more load, the more moments, and the more will be the flexural stresses. In the very similar way, in this formula of torsional shear stress, this torsional shear stress is depending upon the applied twisting moment. ठीक है जी. Then this is C is basically कि आपका जो circle है इसके centroid से end तक का distance. This is called the C. This is basically a geometrical property. The more the diameter of the bar, ठीक है जी, जब आपके पास उसका डायमीटर ज्यादा होगा उसके अंदर जो है उसकी प्रॉपर्टीज वेरी करना स्टार्ट हो जाएंगी. सिमिलर वी हैव जे, वी कॉल इट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जिस तरह आपके पास यहाँ पर आई था विच इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है जी. So this I is for a rectangular shape body, for a square shape body or something else. But once you come to circular shaft, यानी आपकी bodies जब circular form के अंदर होती हैं, then instead of moment of inertia we represent their resistance cross-sectional properties with this variable which is called polar moment of inertia. ठीक है जी. This is not simple moment of inertia, this is polar moment of inertia. अच्छा जी. Now in this slide basically आपके सामने एक ट्राइंगल शो किया है. ठीक है जी. ये सर्कुलर शाफ्ट जो है बेसिकली उसको आप साइड व्यू से देख रहे हैं. यू आर जस्ट व्यूइंग इट साइड व्यू, यानी यहाँ से आप इसको व्यू करें. ठीक है जी. जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ पर कुछ एरोस शो किए हैं which have different length. On the extreme periphery you have the maximum length. The length of this line is basically representing the intensity of torsional shear stress, यानी कितनी ज़्यादा shear stress develop हुई भी है या experience कर रही है वो rod, वो basically इस length की line से represent किया गया. It means you have a zero torsional shear stresses at the midpoint, and once you go at the extreme peripheries की तरफ move करते हैं, यानी radial distance के अंदर move करना start करते हैं, this row is called basically the radial distance, and this row this becomes extreme at this point. ठीक हो गया जी. So from this we can conclude that torsional shear stress is directly proportional to this radial distance rho. ठीक है. Once this rho becomes or achieves the maximum value, we call this maximum value of rho as C. ठीक हो गया जी. यानी यहाँ पर आप रो की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे, इस पॉइंट ओ के ऊपर, द वैल्यू ऑफ रो विल बी 0. At anywhere in between these 2 points, these extreme 2 points, this will be called as rho. And once you reach at this point, the rho will now become equals to C. ठीक है जी. तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टॉ टी इंटू सी ओवर जे. ठीक है जी. एंड maximum shearing stresses, yani maximum torsional shear stresses will become T C over J. So now what is the difference in these two formula? This is just a generic formula for calculating torsional shear stresses at any location. ठीक है जी. At any radial, यानी उसका एक उस पॉइंट का एक रेडियल डिस्टेंस हो. फॉर एग्जांपल मैं आपको इस पॉइंट के कहता हूँ कि यहाँ पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस फाइंड करें, या इस पॉइंट के ऊपर टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस. सो व्हाट यू विल डू फर्स्ट, you will check what is the radial distance of this point, because torsional shear stresses are depending on this thing. So once these radial distance they become maximum, so this rho becomes C. ठीक है, जिस तरह के इस फिगर के अंदर भी नजर आ रहा है, this rho becomes C, and therefore this torsional shear stress will be maximum. ठीक है. अच्छा. We have different kind of shafts in industry. What we call them as a solid shaft, and the other one, these are like the donut shapes. They have openings at the mid, यानी उनके सेंटर के अंदर openings होती हैं, और ends के ऊपर उनके ऊपर solid होता है जी. T force जो है basically this is T force is called torsion, यानी twisting moment है ये basically. ठीक है जी. T force is called the twisting moment. जिस तरह आपके पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस के अंदर सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई था, सो दिस वाज अप्लाइड मोमेंट. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी हैव टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस टी इक्वल टू टी सी ओवर जे, so this one is torsion shear stresses, and this one on the right hand side of the screen, this is called torsion, ये twisting moment है उसका. ठीक है जी. यानी आपने उसके एंड के ऊपर कितना ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, कितना टॉर्क लगाया. सो वी हैव दीज टू डिफरेंट कैटेगरीज शाफ्ट्स के अंदर. दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड शाफ्ट,
The difference comes in polar moment of inertia calculations. ठीक है, हमारे पास जो formula है shear stress के, it has the value of J, which is polar moment of inertia. So both these two categories, they have a different polar moment of inertia. ठीक है जी. You can see for a solid shaft it is half pi into C4, ठीक है, where C is the distance from the center to extreme periphery. And if it's a donut shape, like if it is empty from center, you have this formula, C naught 4 minus Ci4. ठीक हो गई. This is from the chapter 3. मैं कुछ जो highlighted things है उनको जल्दी से quickly go through करूँगा, और we will spend less time on the derivation things. थोड़ा सा उसको मैं समझाऊंगा. If you want to go through in detail completely, इस चैप्टर को मैं ये जो है आपके पास नोट्स की जो स्लाइड्स हैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा. इफ़ यू वांट टू गो थ्रू डीपली आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, वरना इंपॉर्टेंट थिंग्स को मैंने कुछ हाईलाइट कर दिए. सर जी इसमें वो फॉर्मूला जरा दोबारा से सर बता दें, देखा नहीं. The formula was like I'll just write it here. The formula for torsional shear stress is, it was tau represented by tau. Tau is equal to TC over J. ठीक हो गया जी. Where T is applied torque, यानी जो उसके ऊपर कितना ट्विस्टिंग टॉर्क आपने अप्लाई किया था. C, what is C? कि अगर आपके पास एक सर्कुलर शाफ्ट है तो उसके सेंट्रल पॉइंट से उसके एक्सट्रीम डिस्टेंस, एक्सट्रीम फाइबर तक का जो डिस्टेंस होगा, वी कॉल इट एज C. इट इज बेसिकली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है जी. एंड द लास्ट क्वांटिटी वी हैव इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J. This is a cross-sectional property very similar to moment of inertia of rectangular या square bodies के लिए जितना होता है. तो circular bodies के लिए जो moment of inertia होता है, we represent this with J, polar moment of inertia, and we have different formulas for this, either if it is a solid body or it is a hollow shaped body. तो दोनों के लिए different formulas होंगे. अच्छा जी. Now moving towards this chapter. तो फर्स्ट जो इसके अंदर बेसिकली एक्सप्लेन किया, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉर्शनल फार्मूला, दैट हाउ यू एंड अप विद दिस थिंग कि जी टॉ इज इक्वल टू टी सी ओवर जे. तो उसके लिए उसने समझाया है. बेसिकली मैं इसको क्विकली गो थ्रू करूंगा. इन द फिगर ऑन योर स्क्रीन वी हैव अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट शोन हियर. मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ. ये आपके पास एक सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट है. सो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि उसके एक, इट हैज टू एंड्स. सो ऑन वन एंड इट इज अप्लाइंग let's say a counterclockwise moment, at the other end is applying a clockwise or clockwise उसके ऊपर torque apply की है. ठीक है. So once you apply these different directional torques on each end of this circular shaft, you will see कि body अब क्या करेगी, twist होना start हो जाएगी. ठीक है जी. इसमें twist, आपने twisting moment apply किया, उसके ऊपर ये torque apply किया, तो अब वो क्या करेगी, twist करेगी. ठीक हो गया जी. यहाँ पर वो दिखा रहा है कि there is a point A, और इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी स्ट्रेट लाइन से अगर मैं कनेक्ट करूं, तो ऑन द अदर एंड ऑफ दिस सर्कुलर शाफ्ट द पॉइंट इज बी. वंस यू अप्लाई दीज टॉर्क्स, यू विल सी दैट द पॉइंट बी विल नाउ शिफ्ट टू पॉइंट सी. ठीक है जी. वो मूव करके ट्विस्ट होने के बाद क्या कर गया, पॉइंट सी के ऊपर पहुंच गया. ठीक हो गया जी. तो जब वो शिफ्ट हुआ तो उसने यहाँ पर एक सेंटर के ऊपर एक एंगल इंटरसेप्ट किया, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा. वी कॉल इट इज एंगल ऑफ रोटेशन थीटा. ठीक हो गया जी. अच्छा जी. अब आगे फर्दर ऑन मूव करते हैं. वो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इफ द पॉइंट बी, वंस यू अप्लाइड द टॉर्क या उसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया, तो ड्यू टू दिस ट्विस्टिंग मोमेंट the point B was shifted to point C. Let's assume that there is another intermediate point here, because point B and point C, they both are located at the extreme peripheries. ठीक है. तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेता हूँ which is located at a distance rho. ठीक है. Instead of taking the points at the extreme periphery of the circle, यानी उसकी extreme boundaries पे लेने की बजाय मैं उसको किसी ऐसी पॉइंट पे लेता हूँ which is in between the point O or the extreme periphery. So I'll just consider the point here as D. ये देखें. अब इस फिगर के अंदर यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट A था, मैं इस पॉइंट A को भी नहीं कंसिडर करता समझाने के लिए. उसने डेरिवेशन के अंदर क्या कंसिडर किया, पॉइंट D ले लिया. पॉइंट D is located somewhere here. I'll just say it somewhere here. So once you will rotate, so point D will again come to here at this new point. So the new point will become E.
we say that both these points D or E, they are located at a distance rho from the center and they intercept an angle theta at the center. यहाँ पर उसने एक डायग्राम शो की हुई है बेसिकली विच इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस अलोंग द क्रॉस सेक्शन। यानी आपको पता चल रहा है जिस तरह आप रो की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस क्या करती हैं, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली दे बिकम मैक्सिमम व्हेन रो इक्वल्स टू सी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी डेरिवेशन के फर्दर। अब जब बॉडीज यहाँ से मूव करके यहाँ तक गई, ये बेसिकली उसने क्या किया, उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस आई। वी कॉल दिस एज शीयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, अगर पॉइंट डी के ऊपर एक बॉडी ऑब्जेक्ट था, आपने उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स लगाई, तो इसकी वजह से वो पॉइंट डी उठ के कहाँ आ गया, पॉइंट ई के ऊपर आ गया। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हुई, डिफॉर्मेशन। जिस तरह के आप बार्स के अंदर देखते थे कि लेट्स से देयर इज अ बार हेयर, ठीक है जी, and you apply a force here like P force. Once you apply a P force, तो आपने देखा था कि बॉडी क्या कर जाती थी, इलोंगेट करती थी। ठीक है जी, and you call this as a deformation। ठीक है जी, but this was a longitudinal deformation because the force was applied along the axis of the body. Now the concept is different. You have an external force applied on the body, but the body but the force is not like axial or normal force. This is now a twisting moment. So जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर भी डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होंगी। लाइक दिस पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड टू पॉइंट ई, सो देयर इज अ डिफॉर्मेशन along this length। ये इतनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, वी कॉल दिस डिफॉर्मेशन एज अ shear डिफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। Normally this shear deformation, this is equals to tan theta। ठीक है जी। और आपको याद होगा कि जब आपने वो पढ़ी थी, क्या कहते हैं, फिजिक्स मैथ्स पढ़ी थी इसके अंदर, मैट्रिक के अंदर, तो आपसे अगर ये कहा जाए कि भाई एक एक आर्क लेंथ है यूं करके, ठीक है जी, जिसके सेंटर के ऊपर एंगल थीटा है, एंड इफ आई आस्क यू दैट फाइंड दिस आर्क लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहते थे, आप कहते थे L इज इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा, वेयर L इज this length and r is this distance। तो आप ये डिस्टेंस निकाले थे, L is equal to r theta। now this L is replaced with shear deformation। यानी मैं कहता हूँ मेरे पास बेसिकली ये जो लेंथ है, ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया, नाउ दिस इज बेसिकली इक्वल टू shear deformation। ठीक है जी। और इसका इस shear deformation के लिए इसका जो रेडियल डिस्टेंस है, यहाँ पर r था, नाउ वी हैव अ डिस्टेंस इक्वल्स टू रो। ठीक है, and theta is the angle of intercept। so we have this like new, इसे हमने इसको ड्राइव कर लिया। this is the basic general form, L is equal to r theta if you have to calculate the arc length। so you use this formula and now in order to calculate इसी formula को जब अप्लाई करेंगे present case के ऊपर, so this arc length this becomes equals to shear deformation। ठीक है, this now and r becomes equal to rho theta वहीं आ जाएगा आपके पास। इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ। ओके, नाउ सी ऑन दिस पेज, यहाँ पर वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर ऊपर सारा उसने वही बताया कि दिस इज द shear डिफॉर्मेशन, द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम डी टू ई तक जब आप रोटेट करके वो बॉडी मूव कर गई, तो उसने बेसिकली shear डिफॉर्मेशन की, एंड दिस डिफॉर्मेशन डी ई इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा एस, एंड दिस नाउ कैन बी कैलकुलेटेड इक्वल टू रो इनटू थीटा। अब this factor is a deformation, this is not the strain। ठीक है, we have already studied that there is a difference between deformation and strain। strain is equal to change in length over original length, we call this as strain। you remember this change in length is basically called deformation। this change in length, it is called deformation। so there's a difference between strain, ये जो आपके पास E है, this is called the strain, the strain and change in length। तो अब वो क्या कहता है, like this is the shear deformation here। now I want to check how much is the shear strain। ठीक है, this is a longitudinal strain। ठीक है जी, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते थे, उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेन्स डेवलप होती हैं, we call this as a normal strain।
मगर अगर किसी बॉडी के ऊपर आप shear force अप्लाई करेंगे या twisting shear अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जब strains डेवलप होंगी, we also classify them as strains, but वो क्या होती हैं, shear strains होती हैं. We represent them with a gamma symbol. Instead of E symbol, we have gamma symbol. The formula is again same कि shear strain is equal to shear deformation over original length. ठीक है, so I can write it as यहाँ पर जो deformation आई है, deformation over original length, but the deformation here is will be shear deformation, जो कि मैं इस formula यहाँ से लूँगा. तो आपने putting this value here again rho theta over L, ये आपके पास formula आ गया shear strain का. Now if I want to see कि कितनी shear stress develop हुई है, so shear stress निकालने का जो formula है उसको आप समझिएगा किस तरह. Previously you have read like there is a term which is called modulus of elasticity and it is equal to stress over strain. ठीक हो गया जी, stress over strain. जब आप इस चीज को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ते थे तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आती थी दैट वाज अ लीनियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, और नीचे जो स्ट्रेन आती थी दिस वाज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वी रिप्रेजेंट देम विद गामा एंड दिस इज बिकम्स इक्वल्स टू ई. तो ये आपके पास फॉर्मूला होता था. ठीक है, now the formula has been modified because you don't have the normal stresses here, you have shear stresses. On the denominator part you don't have a simple normal strain, you have a shear strain. So this formula, this has now been updated. तो यहाँ पर जो modulus of elasticity होगा, we have a shear modulus of elasticity G. This is now equals to E की जगह क्या हो गया G, normal stress की जगह क्या आ जाएगी shear stress, और नीचे जो आपके पास strain थी नॉर्मल स्ट्रेन, उस नॉर्मल स्ट्रेन की जगह आप क्या डालेंगे shear strain which is equal to gamma. ठीक हो गया. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला मैं इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ दैट tau which is the shear stress is equal to shear modulus, it is dividing here, यहाँ पे जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा into gamma. So this formula is being shown here on this line. ठीक हो गया. सर जी जी जो है जी चेंज सर क्या है सर जी? जी सॉरी क्या चीज़ है सर वही पूछ रहा हूँ सर जी क्या है सर? हाँ, निजाल थोड़ा सा उसको देखा करें. जी मैं बार बार बोली जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द shear modulus. जिस तरह आपके पास modulus of elasticity होता है इसी तरह ही we have a shear modulus. जब हम नॉर्मल स्ट्रेसेस के टॉपिक पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वी हैव द shear modulus G. ठीक है जी. वैसे ही जो फॉर्मूला होता है वी हैव सिग्मा ओवर ई, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. उसका जो बेसिक फॉर्मूला है दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, बट इन केस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस वाज नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है, एंड देयर वाज अ नॉर्मल स्ट्रेन. बट जब आप बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई ना करें बल्कि उसके ऊपर shear फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेन्स नहीं डेवलप होंगी, shear स्ट्रेन्स डेवलप होंगी. सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस थिंग विद E. नाउ देयर इज अनदर मॉडुलस व्हिच इज कॉल्ड द shear modulus G. ठीक है, वी कॉल दिस एज shear modulus. अगेन ये होगी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ही, but now the stress is not normal stress, it will be shear stress which is represented by tau divided by strain ही होना चाहिए, मगर कौन सी strain, shear strain, and we represent shear strain with gamma. ठीक है जी. अब इस फॉर्मूले में से आपने क्या ड्राइव कर लिया ये चीज that tau is equal to gamma into G. ठीक हो गया जी. We already have यस सर समझ आ गई. the value of gamma. ठीक है, we already have calculated the value of gamma from this equation. तो आपने इस equation में से gamma की value डाली. So ultimately we come up with this formula which says that tau is equal to g theta over L into rho. ठीक हो गया. Now this formula has been derived, small formula. ये formula basically क्या बता रहा है कि that torsional shear stresses are directly proportional to theta. ठीक है, all these things which are in parenthesis, for example मैं इसको explain करता हूँ, all these things which are inside these brackets आपको parenthesis नजर आ रहे होंगे, these are the constant values. Angle of intercept for every material this is a constant value. ठीक है जी. और वैल्यू ऑफ जी, जिस तरह आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, इसी तरह shear मॉडुलस की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है. व्हाट इज
what is important here, you can see that tau is directly proportional to rho. यानी जितना रो की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, व्हाट इज रो? रो हमने कहा था कि बॉडी के सेंटर से आउटसाइड तक का डिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सर्कुलर बॉडी, यानी उसकी सर्कुलर बॉडी है, तो इसके सेंटर से अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई टेक अ पॉइंट हेयर, लाइक दिस इज अ ब्लू पॉइंट हेयर, तो इसके लिए रो की वैल्यू कितनी होगी? दिस विल बी द रो. इफ आई टेक अनदर पॉइंट व्हिच इज द येलो पॉइंट located somewhere here, so for this point the value of rho will be this. So these are 2 points, one represented with the yellow and other with the blue color. What do you think that which of the 2 points will have more shear stresses? किसके अंदर shear stresses ज़्यादा होंगी, torsion shear stresses? Definitely the point which has a higher value of rho, because हमारे पास जो formula भी derive हुआ, that formula is basically showing that torsion shear stresses is directly proportional to rho. तो जितना body किसी भी बॉडी के ऊपर आप कोई एलिमेंट को इन्वेस्टिगेट करें, दैट एलिमेंट इज जितना वो अपने सेंट्रॉइड से दूर है, यानी उसके सेंटर पॉइंट से दूर है, उतनी ही उसके अंदर टॉर्शन शियर स्ट्रेसेस क्या होंगी? ज्यादा डेवलप होंगी. अच्छा जी, एल इज द लेंथ ऑफ दिस बार, यानी जो आप ले रहे हैं, क्या कहते हैं, सर्कुलर शाफ्ट ले रहे हैं, दिस इज एल, यानी ये कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल आपने एक मीटर की बार ले ली, उसका डायमीटर भी नहीं चेंज हो रहा, उसकी लेंथ भी चेंज. जब आप उस पर टॉर्शन शियर से अप्लाई करेंगे ना, तो यू विल अज्यूम दैट द बार विल रिमेन इन द सेम लेंथ. ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है जी. दिस इज अ गुड थिंग. मैं आपको जिस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स से द प्रीवियस केस जो कि हमने स्टडी किया था, दैट यू हैव अ शाफ्ट हेयर और लेट्स से अ बार हेयर एंड यू अप्लाई अ फोर्स. जब आप इस पे फोर्स, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं, यू ऑब्जर्व दैट द लेंथ चेंजेस. यानी ओरिजिनल लेंथ एल थी, देन देयर वाज अ डिफॉर्मेशन, तो लेंथ अब क्या कर गई? चेंज कर गई. हाउएवर इन दिस प्रेजेंट केस, यानी जब हम टॉर्शन अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो वी अज्यूम दैट टॉर्शन लगने से उसकी सिर्फ शेप चेंज कर रही है. देयर इज अ चेंज इन शेप, देयर इज नो चेंज इन इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ. ठीक है. दैट इज व्हाई आई पुट दिस लेंथ ऑफ शाफ्ट, this shear modulus and the angle of intercept in parentheses, considering that all these factors are constant, and we can say that tau is directly proportional to rho. अच्छा जी, आगे इस फॉर्मूला को फर्दर जो है उसने एलेबोरेट की है. ठीक है जी. विद दिस फिगर, वो बेसिकली क्या कहता है, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई टॉर्क लगाएंगे, ठीक है जी, दिस हैज टू बी रेजिस्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस. बॉडी के ऊपर हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगी. जिस तरह कि हमने देखा था कि आप किसी बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे, वो बेंड होने की कोशिश करेगी. अब जैसे ही ये फोर्सेस अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आई जस्ट एक्सप्लेन इट विद दिस वे, कि लेट्स से ये एक बीम है with this supports, there is a force here, there is a force, another force. जब भी आप ये forces apply करते हैं and you just cut through a section in the body, so what you see that there are internal forces हमेशा. ठीक है जी. इस बॉडी के अंदर क्या डेवलप होती थी? इंटरनल फोर्सेस डेवलप होती थी, which we classify as like shear stress, shear force. There was a moment there, then there was a normal axial forces, and these internal forces बेसिकली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनल रेजिस्टेंस. यानी बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी डेवलप हो रही है, एक्सियल स्ट्रेस कितनी है, नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है, शियर स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है. तो वो इस फिगर के अंदर बेसिकली क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि लेट्स से देयर इज अ सर्कुलर शाफ्ट एंड यू अप्लाई एक्सटर्नली अ टॉर्क ऑन दिस बॉडी. ठीक है, आपने उसके ऊपर ये टॉर्क अप्लाई कर दिया. तो इस टॉर्क को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर इंटरनल, यहाँ पर दूसरे एंड पर उसने एक क्रॉस सेक्शन कट किया. तो कहता है कि ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिफरेंट, दिस क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. ठीक है, यानी ये जो सर्कुलर है, दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स. अगर मैं इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगाना स्टार्ट कर दूं, सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल डॉट्स विल अल्टीमेटली मेक अप दिस क्रॉस सेक्शन. इजंट इट? ऐसा ही है. अगर लेट से मेरे पास एक, जिस तरह की एक बीम होता था, मैं आपको कहता था बीम है, उस बीम के ऊपर स्ट्रेस एलिमेंट्स थे स्मॉल रेक्टेंगुलर फेसेस के. ठीक है जी. So if I combine all these stress elements, this will ultimately make up the beam, rectangular beam बना रहा है. Now instead of this rectangular beam, we have a circular shaft. जब मैंने इसके ऊपर सेक्शन कट किया, you have a circular shape here. So I'll just assume that there are small circles, छोटे छोटे circles हैं, which are making up all the entire circular body.
इन स्मॉल, इस टोटल एरिया को हम ए कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट दीज स्मॉल पॉइंट्स, द वन आई शो राइट नाउ हियर, जिस तरह मैं स्क्रीन के ऊपर हूँ, दीज स्मॉल पॉइंट्स, these are infinitesimally small cross sectional areas and I represent them with differential areas dA. ये इतने स्मॉल dA हैं कि इनके लिए वैल्यू ऑफ रो सेम हो जाएगी, ठीक हो गई। अब आप क्या करेंगे, ये स्मॉल एरियाज बेसिकली क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू अप्लाइड टॉर्क, कि बॉडी के ऊपर एक्शन टॉर्क कितना हुआ उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस टॉर्क ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक हो गया। वो कहता है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज ये देखें कि हर पॉइंट, ठीक है, यानी यहाँ पर छोटे छोटे और भी पॉइंट्स होंगे, अभी फिगर के अंदर उसने सिर्फ एक पॉइंट ब्लैक से शो किया, मैं डिफरेंट पॉइंट्स और आपको लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स है, ईच ऑफ दिस पॉइंट विल प्रोड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक इंटरनल, जिस तरह आप बीम के ऊपर सेक्शन कट करते थे, सो यू विल सी दैट देयर आर इंटरनल फोर्सेस डेवलप लाइक द shear force, like the axial force, like the moment. All these three things were the internal forces. In the very similar way, if you cut a cross section through this circular shaft, you will see each of these points, these circular points, they will produce internal resistance. तो उनके ऊपर एक फोर्स डेवलप होगी, that force we call it as differential force dP, and this differential force will be is equal to tau into dA. किस तरह देखें, टॉर्शनल shear stress को मैं लिख सकता हूं T is equal to P over A, ठीक है, let's say, ठीक है। if I don't have a complete P, मेरे पास differential P है और differential areas हैं, ठीक हो गया। इंस्टेड ऑफ अगर फॉर्मूला ये हो P over A, फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस तरह स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा ही है। मगर हमारे केस के अंदर कंप्लीट एफ नहीं है, बिकॉज दिस एफ इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है। इस चीज, इस कॉन्सेप्ट को यहां समझिएगा। द बेसिक फॉर्मूला इज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बट दिस एफ इज नाउ बीइंग प्रोवाइडेड बाय नॉट ओनली अ सिंगल बॉडी बट स्मॉल सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कुलर पॉइंट से मिलकर बनी है। लिहाजा वी रिप्लेस दिस एफ विद डी पी, डिफरेंशियल फोर्स, we call this as a differential force. Similarly, we don't have a cross sectional area A, हमारे पास complete A नहीं है, we have small differential elements. So जो नीचे एरिया है डिनोमिनेटर, उसको हम A की जगह किससे रिप्रेजेंट करते थे, DA से, और ऊपर जो फोर्स थी उसको डिफरेंशियल फोर्स से करते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ shear stress is now this one. इसको रीअरेंज कर लें, we can get dP is equal to tau into dA, which is shown here. सो वो कहता है कि यहाँ पर हर एलिमेंट जो होगा, ठीक है जी, हर एलिमेंट जो सर्कुलर छोटे छोटे से एलिमेंट्स मैंने रेड कलर में शो की, हर एलिमेंट के ऊपर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगी, दैट इंटरनल फोर्स इज डीपी, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट अप्लाइड टॉर्क। आपने इसके दूसरे एंड के ऊपर अप्लाइड टॉर्क अप्लाई की, तो हर पॉइंट के ऊपर एक डीपी फोर्स अप्लाई होगी। अब ये जो मैंने एक सर्कुलर पॉइंट शो किया, दिस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस रो फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर बॉडी, ठीक है जी। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स dp इंटू रो, ठीक है, dp इंटू रो, अगर मैं इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं, दिस विल बिकम टॉर्क, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक हो गया जी। जिस तरह आपके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करोगे, ये रेजिस्टेंस टॉर्क। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन फॉर अ सिंगल पॉइंट। जब आप इसको कंबाइन करेंगे फॉर द एंटायर बॉडी, ठीक है जी, अगर आप इसको कंबाइन करना स्टार्ट करें, कंबाइन किस तरह करेंगे, अगर मैं लिखता हूं dp इंटू रो, इस सारे को इंटीग्रेट करने लग जाऊं, इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इफ आई सम अप ऑल दिस फैक्टर्स फ्रॉम ईच सर्कुलर बॉडी, यानी इस पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर जितनी छोटी छोटी सर्कुलर बॉडीज हैं उन सबको सम अप करता हूं, सो आई विल जस्ट पुट अ साइन इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेट करो, सम अप करो, तो दिस विल बिकम dp इंटू रो, and this overall this factor will now become equals to tau r, resisting torque, ठीक है जी। मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं किससे, oops,
I'll just write it with TR, रेजिस्टिंग टॉर्क। एक हो गया अप्लाइड टॉर्क जो आपने बॉडी के एंड के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। इस अप्लाइड टॉर्क को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर डेवलप हुआ, दैट इज रेजिस्टिंग टॉर्क। रेजिस्टिंग टॉर्क इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp मल्टीप्लाई बाय रो, ठीक है जी। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं दैट आपने इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली एक टॉर्क अप्लाई की, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। उस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर जिस तरह इंटरनल फोर्सेस डेवलप होती हैं, इन द सेम वे यहाँ पर क्या होगा कि हर पॉइंट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू डिफरेंशियल फोर्स dp। once you apply this differential force dp with the radial distance rho, क्योंकि हर पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, मैं एक आपके पास येलो कलर से एक और शो करता हूँ पॉइंट, लाइक दिस इज द पॉइंट हियर, सो दिस विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रो। so all these different elements they will experience different forces। उन forces को हमने नाम दे दिए dp, डिफरेंशियल फोर्स, ठीक है जी। once you multiply that differential force with the radial distance, because every point will have a different rho value, आप इनको इस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर देखेंगे, दिस विल हैव अ डिफरेंट रो, दिस विल हैव अ डिफरेंट रो। सो जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे दे विल प्रोड्यूस रेजिस्टिव टॉर्क। एक हो गया अप्लाइड टॉर्क और दूसरी क्या आ गई, रेजिस्टिव टॉर्क। so this formula what I have written here, dp multiplied by rho, this is the resistive torque produced by one of the several elements, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स थे, उनमें से एक एलिमेंट जो रेजिस्टिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज हेयर। so if you want to see that how much is the total resistive torque here, so you just need to integrate it, sum up करना स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया जी। तो मैंने लास्ट के अंदर एक फॉर्मूला लिखा दैट the resistive torque TR is now equal to integration of dp multiplied by rho बाय इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम से हमें पता चलता है कि जितना बॉडी के ऊपर अप्लाइड टॉर्क होगा उतना ही उसके ऊपर रेजिस्टिव टॉर्क भी होगा। सो वी कैन राइट इट हियर एज T इज इक्वल टू TR, ठीक हो गया। दैट अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू रेजिस्टिव टॉर्क। इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ एंड वी गो मूव ऑन, आगे चलते हैं। अच्छा जी just move it somewhere here. ये सारी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन हुई है, ऊपर थ्योरी के अंदर भी लिखी है, और यहाँ पर अगर आप आएंगे सो यू विल सी दैट इट सेज कि अप्लाइड टॉर्क यानी बॉडी के ऊपर जो आपने अप्लाई किया, नाउ दिस इज इक्वल टू रेजिस्टिव टॉर्क, एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट रेजिस्टिव टॉर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इनटू रो, ठीक है। इस फॉर्मूला के अंदर अब आप क्या कर सकते हैं कि डीपी की वैल्यू वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो डीपी है वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड दैट tau is equal to dp over dA, ठीक है जी, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी निकाला था, इसमें से आप dp की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल फोर्स dp इज इक्वल टू tau इंटू dA। सो ये फॉर्मूले की वैल्यू आपने क्या करनी है, उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है। so now the formula of torque, यानी this becomes equals to g theta ओवर एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रो स्क्वायर इंटू डी ए। यहाँ पर क्या किया, एक तो उसने डिफरेंशियल डी ए की वैल्यू डाली पहले इसमें, ठीक है जी। नाउ डी पी जो था, डी पी इज नाउ इक्वल टू टॉ इंटू डी ए। अब इस पैरेंथीसिस के अंदर आपने वैल्यू डालनी है टॉ की। यहाँ पर देखें एक फैक्टर है टॉ, ये टॉ फैक्टर आप पहले निकाल चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको स्लाइड के अंदर बैक पर। यू ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ दिस टॉ इक्वल्स टू हियर, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी विजिबल हुआ होगा, यू ऑलरेडी, अगर आपका पेन पेंसिल है यू कैन जस्ट राइट इट हियर दैट द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टॉ इज इक्वल टू जी थीटा। अपने पास एक पेंसिल और उसके ऊपर लिख लें जी थीटा ओवर एल इनटू रो, ये चीज लिख लें जी, ठीक है जी। जब ये लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जब आप इस स्लाइड पर आएंगे ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस बुक, तो इसमें सर वो नहीं कर क्या लिखा रहे, सर, सॉरी नहीं लिखा सर, दोबारा से दिखा दें सर। ज़्यादा साथ रह रहे हैं ये लें tau is equal to g theta over L into rho,
ठीक हो गया जी? लिख दिया सर। और वो भी बता सर कि इसमें थीटा क्या है सर और जी क्या है सर? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। थीटा इज एंगल ऑफ इंटरसेप्ट, जी जो है शेयर मॉडुलस है, एल इज द लेंथ ऑफ द बार, रो इज द रेडियल डिस्टेंस। ये तो पुराने वेरिएबल्स हैं, ये पिछले पेज में से मैंने निकाला है। इस बुक का जो पिछला पेज है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये उसमें से है, एंगल ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ, जी, रो। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं ऑन सर हियर, थीटा क्या है सर? एंगल ऑफ इंटरसेप्ट थीटा, ठीक है। यानी अगर एक बॉडी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक लेट से दिस इज द सर्कुलर बॉडी, ठीक है, और अगर ये पॉइंट ए था टॉर्क अप्लाई करने से पहले, जब आपने टॉर्क अप्लाई किया, नाउ द पॉइंट ए हैज नाउ बीन शिफ्टेड टू अ न्यू पॉइंट, लेट से पॉइंट बी है, तो इसने सेंटर के ऊपर जो एंगल इंटरसेप्ट किया, लाइक दिस वन, दिस इज कॉल्ड थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेप्ट। ये पॉइंट ए पॉइंट बी से बी तक मूव कर गया। क्यों मूव किया? क्योंकि आपने एक्सटर्नली अप्लाई टॉर्क अप्लाई की। जब टॉर्क अप्लाई की तो बॉडी की शेप चेंज हुई। शेप क्या चेंज हुई? कि पॉइंट ए पॉइंट बी के ऊपर शिफ्ट कर गए। जब वो शिफ्ट करेगा तो उसने जितना सेंटर के ऊपर एंगल इंटरसेप्ट किया, वी कॉल इट एज थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके। So from that equation we will put the value of tau. जब आप वो वैल्यू इधर डालेंगे, the equations become like this one. ठीक हो गया जी? In this equation it says कि the quantity integration of rho square into dA, it is basically equal to polar moment of inertia. अगर किसी बॉडी, सर्कुलर बॉडी है, तो उस सर्कुलर बॉडी का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जे, दैट जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो स्क्वायर इनटू डी ए। लिहाजा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस इक्वेशन के अंदर से ये जो फैक्टर है इसको जे लिख सकता हूँ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नाउ दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस थिंग, यानी ये जो इंटीग्रेशन और रो स्क्वायर इनटू डी ए था, आई जस्ट पुट जे इंस्टेड ऑफ दैट वन। इसको फर्दर रीअरेंज करें, दिस इज अ फॉर्मूला, ये भी बन गया। दिस इज इक्वल टू, इसमें से थीटा की वैल्यू निकालें, विच इज द एंगल ऑफ इंटरसेप्ट। डिनोमिनेटर वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाकर न्यूमरेटर्स में दे विल कम एट डाउन। सो यू हैव दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल ऑफ इंटरसेप्ट। के बॉडी के अंदर जो एंगल ऑफ रोटेशन बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड टॉर्क। ठीक है जी, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई टॉर्क। आप बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे, उतना ही बॉडी के अंदर एंगल ऑफ इंटरसेप्ट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कम टॉर्क अप्लाई करता हूं तो पॉइंट ए शिफ्ट करके किधर आ जाएगा? पॉइंट बी के ऊपर। अगर मैं ज्यादा टॉर्क अप्लाई करूंगा, मे बी पॉइंट ए शिफ्ट करके किस जगह पर आ जाएगा? बी डैश के ऊपर। सो इन द सेकंड केस, जो मैंने सेकंड केस बनाया, इसको मैं बल्कि डिफरेंट कलर से शो करता हूं सो दैट यू कैन इमेजिन इट क्लियरली विद द ब्लू कलर. So if you apply more torque, then point A will now shift to a new location, which is B dash. So in the second case, the angle of intercept is more as compared to the previous case, which has a less angle of intercept. So the equation is telling you that angle of intercept theta is directly proportional to applied torque. जितना ज़्यादा torque apply करेंगे, externally applied torque ज़्यादा करेंगे उतना ही। It is also telling you that it is inversely proportional to J and G. अगर बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, अगर एक बॉडी थिक है, एक रॉड थिक है, यानी एक आप पतली रॉड ले लें, ठीक है जी, और एक इसके साथ मोटी रॉड ले लें जिसका डायमीटर ज्यादा था, आप इन दोनों के ऊपर सेम टॉर्क अप्लाई करें, इनमें से ज्यादा ट्विस्ट कौन सी करेगी? स्मॉल वाली या फिर बड़ी वाली? स्मॉल वाली सर, स्मॉल जो होगी वो एग्जैक्टली, जो स्मॉल होगी उसके अंदर एंगल ऑफ इंटरसेप्ट, इसका मतलब है ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके डायमीटर्स, उसकी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज इनहैंस कर दें, उसका डायमीटर इंक्रीज कर दें, रॉड का डायमीटर, सो इट विल हैव मोर रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर एंगल ऑफ इंटरसेप्ट कम डेवलप होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे हम फर्दर मूव करते हैं, इसी फॉर्मूला को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर उसने इस पैराग्राफ के नीचे बेसिकली एक्सप्लेन किया दैट दिस थीटा it can be calculated in different unit system, इंटरनेशनल में भी कर सकते हैं, you can calculate this one in US customary units जो कि हमारे पास हैं। उन दोनों के लिए बताया कि that what should be the units of torque, what should be the units of L, J और G, इनके क्या units होंगे, then what units you will get from this equation। तो ये दोनों डिफरेंस को एक्सप्लेन किया, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब वो करता क्या है, कहता है कि
इसी फॉर्मूला को एडजस्ट करने लगे। जी आमिन बताएं। Sir, I want to ask that where exactly this torsional stress is acting on the body? Mhm. Like, is it parallel or perpendicular to the cross-sectional area? ठीक सही है। Because in shear stress, we have studied that the shear stress must be parallel to the cross-sectional area or the area. हाँ, दिस इज अगेन पैरेलल। मैं आपको एक स्लाइड से शो करता हूँ दैट विल क्लियर दिस थिंग। दिस वे मे बी दिस वन। ये देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी दैट यू सी हियर, यानी उसका सिमेट्रिक व्यू है। एंड जब मैं इसके क्रॉस सेक्शन को देख रहा हूँ तो नाउ दीज एरोज, ठीक है, these are representing torsion shear stresses, so these are parallel to your cross section, ठीक है। normal stress के अंदर इस तरह नहीं था। when you have the normal stresses like say if this is again this body, so normal stress के अंदर क्या होता था, you have this kind of stresses. now these arrows are perpendicular to this hashed area, but here in this case of, because this is a type of shear stress, जिस तरह कि आपने खुद बताया कि shear के लिए जरूरी है that this should be parallel to the cross section. so if you see this figure here, so these arrows which are representing the intensity of this torsion shear stress, they are parallel to the cross section, ठीक है, cross section के parallel है। and again the length of each arrow, they are representing the intensity. the more you are away from the center of the circle or the center of the circular shaft, the more the value of torsion shear stress will be there. Shear mean tangential, yes exactly. normals mean perpendicular, shear means tangential आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। I hope it's clear now. Yes. ठीक है। और मैं इसको वापस हम शेयर स्क्रीन पे जाते हैं। we come back at the thing here. अच्छा, यहाँ पर आने के बाद जिस तरह मैंने बताया था कि ऑन दीज टू पैराग्राफ्स, यहाँ से यहाँ तक जिनको भी मैंने हाईलाइट किया है ऑन योर स्क्रीन, दे आर बेसिकली एक्सप्लेनिंग दैट in custom US customary units and in case of system international units, you have to use a different units for T, L and J and G, and once you use them, what units you will get from theta, वो यहाँ पर explain हुआ है। इसको मैं फिलहाल यहाँ पर अभी रहने देता हूँ। We come at the lower point, which is यहाँ पर वो बता रहा है कि इसी इक्वेशन के अंदर बाय रिप्लेसिंग द प्रोडक्ट जी थीटा और एल इन इक्वेशन सी, कौन सी इक्वेशन सी थी आपके पास, पीछे आते हैं वापस, पीडीएफ स्लो है। जी थीटा ओवर एल इन इक्वेशन सी, गो बैक, ये इक्वेशन आप जी दोबारा लिख लें, इक्वेशन सी को यहाँ पर, ये इक्वेशन लिख लें सी अपने पास पेज पे। इस इक्वेशन के अंदर से मैं जी थीटा और एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जी थीटा और एल किस चीज के इक्वल हो जाएगा, टॉ ओवर रो के, ठीक है। इस इक्वेशन में से वो क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू निकालें, जी थीटा और एल। ये इक्वेशन आप लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। एंड दिस इज अनदर इक्वेशन, थर्ड वन 3-1, इसको भी देखिएगा। इसमें से मैं वैल्यू निकालता हूँ इक्वेशन 3 में से, इसमें से वैल्यू निकालें टी ओवर जे की, जी थीटा ओवर एल इज इक्वल्स टू टी ओवर जे। ये देखिए मैंने इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाली जी थीटा ओवर एल की, विच इज इक्वल टू टी ओवर जे। ये वैल्यू जी थीटा ओवर एल की आपने इक्वेशन सी के अंदर पुट करनी है, एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन विच इज इक्वेशन 3.2, which is the final equation for calculating torsional shear stresses. इस इक्वेशन 3-1 में से जी थीटा ओवर एल को आपने रीअरेंज किया। आफ्टर रीअरेंजिंग यू गेट जी थीटा ओवर एल इज इक्वल टू टी ओवर जे, ठीक हो गया। और ये जी थीटा ओवर एल की वैल्यू अगर आप पीछे इक्वेशन 3 में जाते हैं, मैं इसको यहीं पर ही रहने देता हूँ और क्लियर करके पीछे से दिखाता हूँ।
क्लियर करना पड़ता है पुरानी स्क्रीन। थैंक यू सर। ये जी थीटा ओवर एल की जगह टी ओवर जे डालें, ठीक है, जी थीटा ओवर एल की जगह टी जे ओवर 3 इनटू रो। नाउ द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बिकम्स this one. Tau is equal to, tau is equal to T into rho over J, that the torsional shear stress is directly proportional to applied torques। ठीक है, दोनों चीजों के अंदर फर्क पड़े समझें, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आपको चीजों को समझ आना, that the torsional shear stress, it is represented by tau, this is directly proportional to applied torque or twisting moment। the more the moment, the more will be the shearing stresses उसके अंदर develop होंगी। again this shearing stress, torsional shear stress, it is also depending upon the distance rho। we also concluded from the figure previously I shown you जिसके अंदर different arrows show किए हुए थे, and the arrow length of the arrows are representing the intensity of these torsional shear stress। तो जितना रो की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी उतनी ही उसके ऊपर torsional shear stresses ज्यादा होंगी। it means if the element is located here somewhere, it will have less value of torsional shear stress, it will have more values of less। अच्छा जी, now let's start back again। so this is the formula which has been derived now, and the formula is telling that the torsional shear stresses, they are directly proportional to applied torque, they are again proportional to radial distance, and they are inversely proportional to polar moment of inertia। यानी बॉडी की जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, we call them as ये उसके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से आ रही है, यानी बॉडी का जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतनी डेफिनेटली जे की वैल्यू भी ज्यादा होगी, and the more the value of J, the less will be the torsional shear stresses experienced by the circular shaft। This is the generic formula for calculating torsional shear stresses of any point which is located at a distance rho from the center। so if you have points, यानी let's say यहाँ पे कोई point है, यहाँ पे कोई point है, यहाँ पे कोई point है, अगर इन points के अलावा कोई ऐसे points हो which are located at the boundary of your circular shaft, यानी उसकी extreme boundary के ऊपर lie कर रहे हो, then the distance rho, this becomes equals to c, which is called the maximum distance, radial distance। जब ये radial distance maximum हो जाएगा, then the shear stress will also become maximum। so the formula now becomes maximum shear stresses, sometimes कुछ books के अंदर इसको tau max भी लिखते हैं, this is the same thing। maximum shear stress is equal to torque into r, r is the radius, sometimes कुछ books के अंदर इसको t into c over j भी लिखा होगा, it's the same thing। instead of c, sometimes they write it as r। so torque into radius over polar moment of inertia। so this was the derivation। I will just check that whether we have to include this one in your exam or not, ये मैं बाद में कवर करूंगा। for time being आपने अपने इस कोर्स में इसको रखना है जी। again now, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि that we have different formulas for calculating polar moment of inertia of a solid shaft and a hollow shaft। if it's a donut shape यानी अंदर से hollow है, so you have a different formula। for example, you have different radius here, one is called the internal radius small r, and one is called the external radius। so both have to be incorporated in your polar moment of inertia calculation। so you can just write down these two formulas, different formulas for calculating polar moment of inertia for these things। once you put these values in this formula, maximum shear stress formula के अंदर आके यहाँ पर इस formula के अंदर आके J की different values डालेंगे, so you will have different values, different formulas to calculate maximum shear stresses which are shown here। these are the two formulas। यानी आपको पीछे एक जनरल फॉर्मूला दिखाया था, मैंने उसके अंदर J की वैल्यू डाल दी, सॉलिड शाफ्ट के लिए सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए हॉलो की वैल्यू डाली। so this is the formula for calculating maximum shear stresses in case of solid, and this is equation 32c for hollow shafts। ठीक होगा जी। now taking this one step ahead, because these circular shaft, these are being used to transmit powers। यानी हमारी industrial application अगर आप इसकी देखेंगे, all these circular shaft, these are being used to transmit powers। जिस तरह आपने कुछ numericals के अंदर लास्ट में देखा था कि there was a pulley थी, उसके साथ wheel था, the wheel and pulley were connected through a shaft which was applying a torque। तो जब भी आप इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे इन शाफ्ट की, so you will see that these are used for basically transmitting power। ठीक है, so आवाज नहीं आ रही,
आवाज नहीं आ रही, ये कैसे? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल? आ रही है सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कि आपने देखना है कि बेसिकली इन फॉर्मूलाज के अंदर कहीं भी पावर का वर्ड नहीं हुआ अभी तक। जो आपने फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं, दिस वन दैट इज शोइंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टॉर्क इनटू आर ओवर जी, इस फॉर्मूला के अंदर कहीं भी आपके पास पावर का जिक्र नहीं है। देयर इज अप्लाइड टॉर्क हियर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शियर स्ट्रेस, बट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट समहाउ दिस पावर थिंग, ताकि हम उसकी रियल एप्लीकेशन भी दे सकें इंडस्ट्री के अंदर क्या है। ठीक है जी। तो अगर मैं इस चीज़ को हम रिवाइज करें कि हमने फिजिक्स के अंदर बेसिकली पढ़ा था कि दैट पावर इज बेसिकली इक्वल टू T into W, where omega is the angular frequency। ठीक है, आपको शायद याद होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कहते थे इसकी, और T इज द टॉर्क। सो पावर जो जनरेट हो रही है, अगर आपके पास एक सर्कुलर शाफ्ट है एंड दैट सर्कुलर शाफ्ट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट टॉर्क T, यानी आप उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं, ठीक है, सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर T टॉर्क अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क है, और इस टॉर्क अप्लाई करने से दैट टॉर्क इज बेसिकली रोटेटिंग with a certain angular frequency, that angular frequency is let's say omega, इसको मैंने small w से रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय दिस ओमेगा, दिस बिकम्स इक्वल टू द पावर, यानी कितनी पावर ट्रांसमिट कर रही है कोई शाफ्ट, दैट डिपेंड्स हाउ मच यू हैव अप्लाइड द टॉर्क एंड हाउ विद हाउ मच स्पीड दैट इट इज रोटेटिंग। अगर आप देखेंगे कोई शाफ्ट ज्यादा तेजी से सर्कुलरली रोटेट कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा पावर या एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, सो वी हैव दिस फॉर्मूला फ्रॉम फिजिक्स सेकंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर से, दिस हैज बीन derived from there. We also know that this angular frequency omega is equal to 2 pi f, 2 pi f, so you can just replace in this equation, इसी equation के अंदर आप क्या करेंगे कि ओमेगा की जगह क्या डाल देंगे, 2 pi f। now the formula becomes power p is equal to torque 2 pi f। इस फॉर्मूला के अंदर से टॉर्क की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, just rearrange this one, after rearranging you get that the torque T is equal to power divided by 2 pi f। so what you can do is कि आपके पास एक ये जनरल फॉर्मूला तो डेवलप हुआ था, दैट फॉर्मूला इज शोइंग द टॉर्क, आप इस टॉर्क की जगह क्या P over 2f डाल के कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि अब जो आपके पास नया फॉर्मूला डेवलप हो, दैट फॉर्मूला इज कंटेनिंग दिस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पावर। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल पावर को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन फर्दर। ये जो इक्वेशन 3-3 है, जस्ट यू कैन जस्ट राइट डाउन समवेयर दैट टॉर्क इज इक्वल टू पावर ओवर 2 पाई एफ, एक ये इक्वेशन, और अपने सामने ये दूसरी इक्वेशन ज़हन में रखिएगा दैट दिस वाज द इक्वेशन। ठीक है जी, व्हिच हैज टॉर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय जे। वो करता है क्या, कहता है यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया कि दैट दिस पावर पी, नॉर्मली अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जाकर देखें, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर, एचपी के फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स पावर के अंदर। ठीक है जी, एंड दिस फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है जी, ये जो एफ है आपके पास फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ राउंड पर मिनट्स, आरपीएम। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल वो बताएगा यहाँ पर आके, एक मिनट इसको जरा होने दें क्लियर। अब उन्हीं फॉर्मूलाज को जो पीछे मैंने आपको दो इक्वेशन दिखाई थी, उन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए उसने नया फॉर्मूला यहाँ डेवलप किया, यानी कैलकुलेशंस की, और कैलकुलेशन करते हुए कहा बिकॉज दैट पावर शुड बी इन यूनिट्स ऑफ हॉर्स पावर, यानी इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट की जाए, फ्रीक्वेंसी को इन राउंड पर मिनट में किया जाए, देन यू हैव अ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस टॉर्क। उस फॉर्मूला को उसने मॉडिफाई किया एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू, एक मिनट रुकें जी, now the formula for the torque is torque, it should be units of pound inches, equals to 63 multiplied by 10 की power 3 p over f। पीछे जो आपने फॉर्मूला देखा था that was torque is equal to p over 2 pi f। अब उसको सिंप्लीफाई कर लिया और उसने बता दिया कि दैट यू हैव टू यूज द पावर इन यूनिट्स ऑफ हॉर्स पावर, यानी इसको एक्सप्रेस करेंगे हमेशा हॉर्स पावर के अंदर। if you take this frequency in round per minutes rpm instead of round per seconds, यानी एक होता है आपके पास राउंड पर सेकंड आरपीएस,
और एक होता है RPM. RPM is the units which is commonly used in industry. अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट्स देखेंगे देन जो आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड्स आती हैं बेसिकली उसको हम कहते हैं RPS. वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, बट इंडस्ट्री के अंदर RPS नहीं RPM यूज होते हैं, राउंड पर मिनट्स. तो वो कहते हैं कि इफ वी इनकॉर्पोरेट दीज टू थिंग्स जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज की जा रही हैं, दैट द पावर इज एक्सप्रेस इन HP इंस्टेड ऑफ वॉट्स. स्टैंडर्ड यूनिट्स वॉट हैं, ठीक है, इस चीज को भी समझ लें, स्टैंडर्ड यूनिट्स वॉट हैं, बट इंडस्ट्री के अंदर हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट किया जाता है. स्टैंडर्ड यूनिट्स फ्रीक्वेंसी के राउंड पर सेकंड्स हैं, बट इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज की जाती है, राउंड पर मिनट्स. कन्वेंशंस ये हैं. So if you incorporate these two industrial things in your formula, then this formula torque is equal to P over 2 pi F. Now this becomes equal to this thing. The torque will be in units of pound inches. यहाँ पर जो आपके पास torque के results आएंगे, they will be in pound inches. This is equal to product of force into distance. Force into distance. Distance in inches, force in pound. Equal to 63 into 10 की power 3. You have to take power in horse HP, frequency in round per minutes. यहां से आप क्या करेंगे, you will calculate torque. यानी आपको इंडस्ट्री के अंदर ये इस फॉर्मूले का फायदा देखें, इससे फायदा क्या होगा. अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है कि भाई मुझे बताएं कि मैंने इतनी पावर ट्रांसमिट करनी है, सो द अमाउंट ऑफ पावर इन HP इट विल बी गिवन टू यू, ये आपको बताई जाएगी. साथ में आपको ये बताया जाएगा कि भाई ये जो सर्कुलर शाफ्ट है या ये जो एलिमेंट है ये इतनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर सकता है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से रोटेट नहीं कर सकता, इससे वाइब्रेशंस जो हैं इंडस्ट्री के अंदर या उसके फ्लोर के अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होंगी. सो दे विल गिव यू दीज टू क्वांटिटीज, लाइक व्हाट विल बी द पावर दैट दे वांट टू ट्रांसमिट, एंड दे विल रिस्ट्रिक्ट यू के जो आपका सर्कुलर शाफ्ट है, दिस शुड नॉट रोटेट बियॉन्ड दिस RPMs, यानी इतनी RPM से ज्यादा रोटेट ना करे. तो जब वो दो वैल्यूज देंगे, यू विल यूज दीज टू क्वांटिटीज एंड कैलकुलेट द टॉर्क. जब आपके पास टॉर्क आ गया, तो टॉर्क का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देख लिया, दैट इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ टॉर्क देन यू कैन कैलकुलेट टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस, TC over J. So in this formula you need the torque, and this torque can be calculated from this thing depending upon the industrial requirements. ठीक हो गया जी. यहाँ तक लिख लें जी. इसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं जो कोर्स के अंदर इंक्लूड हैं. I'll just show you here right now on the screen. For torsion we have the three different numericals, 305, 304 and 306. इन तीनों को भी हम कवर अप करेंगे, and the rest of the 4 numericals you have to do in your home assignments. Okay जी, 304 से start करते हैं, then we will move on further. So first I will just explain the statement, what the question says, and then we will check what are the inputs and what the numerical is asking for us. So the problem 304 says that there is a steel shaft 3 feet long. 3 feet long means that you have been provided with the length. ठीक है जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, the length, the polar moment of inertia, these are some cross sectional properties that you need in order to calculate the torsional shear stresses. We have the formula tau is equal to like let's say TC over J. ठीक है जी. Similarly जब आपने angle of intercept calculate करना था, so you have different variables, so you need the value of this length L. ठीक है. So this is being given here, has a diameter of 4 inches. This is the diameter. ठीक है जी. So if it is a diameter, then the radius will be equal to half of the diameter. ठीक है जी. Radius equal to d by 2. ठीक है. And we already know that the radius is equal to basically c. तो इसका मतलब ये है कि आपको वो वैल्यू दे रहा है c की, if indirectly दे रहा है, यानी आपको ये बता रहा है the value of c is this one. वो आपको बता रहा है diameter of the rod is this one. So you are able to calculate the radius. Radius will be equal to 2 inches. Definitely, if the radius is 2 inches, it means that the value of c that you have to consider in the numerical is 2. Is subjected to a torque of 15 kF. ठीक है जी. This is the applied torque. ठीक है जी. Determine the maximum shearing stresses. Torque की value find करें, and the angle of twist theta. ये दोनों चीजें find करें. तो कहता है use the value of G equal to PSI. इस चीज का ख्याल रखिए that the modulus of shear it is being given in units of pound per inch square.
यानी फोर्सेस पाउंड्स में लिए हैं, डिस्टेंस किस में लिए हैं, इंच में लिए हैं। जो अप्लाइड टॉर्क है दैट इज बीइंग गिवन इन यूनिट्स ऑफ किप फिट, इट मींस फोर्सेस आर टेकन इन किप नॉट पाउंड्स, ठीक है, 1000 पाउंड्स होते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ इंचेस इट हैज बीन टेकन इन फिट्स. So you have to make sure that there is a consistency of units while you are doing your calculations. ठीक है जी. So in order to calculate the first item, which is the maximum shear stresses, we have this formula, because this is a circular solid shaft. हमें ये नहीं बताया गया था that this is a donut shape, ये open है in the center में से. अगर दो रेडियस दिए जाते हैं, यहाँ देखें आपको एक डायमीटर या एक रेडियस दिया, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद टू डिफरेंट डायमीटर्स, लेट्स से लाइक दिस वन, अगर ये हॉलो होती तो आपको दो डिफरेंट रेडियस दिए, डायमीटर दिए जाते, एक स्मॉल डी और एक कैपिटल डी, लाइक यू कैन आल्सो से इट लाइक स्मॉल रेडियस एंड कैपिटल रेडियस. अगर ये दो रेडियस या दो डायमीटर्स दिए जाएं, इट मींस दैट द गिवन शाफ्ट इज नॉट अ सॉलिड शाफ्ट, ठीक है, वो उसकी हॉलो शाफ्ट है अंदर से. बट नाउ बिकॉज वी आर प्रोवाइडेड विद ओनली सिंगल डायमीटर, इट मींस दिस इज अ सॉलिड शाफ्ट. सो फॉर सॉलिड शाफ्ट वी ऑलरेडी हैव द फॉर्मूला, जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई थी उसके अंदर, टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू 16t ओवर पाई डी क्यूब, वेयर t इज द अप्लाइड टॉर्क, d इज द डायमीटर. ये दोनों चीजें हमें गिवन है, टॉर्क भी हमें गिवन है, डायमीटर भी गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट टॉर्क मैक्स. What is the difference here that you need to observe is कि 16 this is a constant, ये formula का आ गया. 15 क्या टॉर्क, अगर आप जाके देखेंगे this is 15 के फिट, so इसको आपको किस यूनिट्स में रखना है, पाउंड में, ठीक है. 15 के फिट है, so मुझे किप फिट में नहीं लेके जाना, मुझे इसको पाउंड इंचेस में लेके जाना है. so in order to convert this kip into pounds, I need to multiply this with 1000, ठीक है जी, that 1000 is being shown here, and in order to convert this feet into inches you need to multiply it with 12. so this is the conversion for feet to inches, and this is the conversion from kip to pounds. so अब आपके units consistent हो गए. diameter देखें किस units के अंदर लिया, this is again taken in inches. once you divide them you will get the torque max in units of psi, ठीक है. dividing it again with 1000 you can calculate in ksi. these are यहाँ तक अगर PSI में भी कैलकुलेट करते हैं, it is okay, no need to convert it into KSI. but if in the question, if you are being asked to calculate the maximum shear stresses in KSI, you just need to divide PSI with 1000. यानी KSI में अगर आपने लेके जाना है तो PSI की वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे. The next thing which have been asked in the question is to find the angle of twist, theta. You have the formula theta is equal to TL over JG. This is the formula which we have seen during the derivation. जब मैं आपको निल्सन के चैप्टर्स के अंदर से वो दिखा रहा था तो उसके अंदर ये फॉर्मूला गिवन हुआ था, TL over JG. Again, T is the applied torque, it is given. Length ये भी हमें given थी. Polar moment of inertia and G value of G is given, ठीक है, constant है, but the value of polar moment of inertia ये नहीं थी. We have different values for calculating polar moment of inertia for solid and a hollow shaft, because this is a solid shaft. So polar moment of inertia for this will be equal to pi by 32 into d4. This is the formula to calculate polar moment of inertia of a solid body. ये दोनों भी मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर शो किए थे. I can show you again if you want. Just give me a minute. I'll new share. I'll just put it somewhere here. ये आपको याद होगा कि we have पे जो हमारे पास टी मैक्स में 16 क्या है सर? सर 16 क्या है टी मैक्स में हमारे पास? 16 बेसिकली कांस्टेंट है इस फॉर्मूले का. यानी अगर आप सॉलिड शाफ्ट के लिए देखेंगे, ये देखें, ये इक्वेशन थी, Yes, sir. दिस इज फॉर सॉलिड शाफ्ट 32b. so the formula for calculating maximum shear stress is equal to 16t over pi d cube. t is the applied torque, जो 16 है, this has come from the formula. यानी जब आपने ड्राइव किया फॉर्मूले को तो उसके अंदर से आया हुआ, ठीक है. मैं बता रहा था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये देखें जी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. so if you have like a solid body, तो polar moment of inertia is equal to pi by 32 into d4, और ये second जो है, this is for a hollow shaft. We'll come back again to numericals.
तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसमें यहाँ पर उसने क्या किया, उसने बेसिकली ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाला है फॉर अ सॉलिड शाफ्ट पाई बाय 32 into d4 diameter was also given which is 4 inches into g modulus of shear modulus जिसको हम कहते हैं. This is in units of psi, so you don't need to convert it further. इसको pounds और inches में रहने दें. Again आपने इसकी value डाली divided by this will give you in standard radian units. ठीक है, जिस तरह आपके पास होता है ना कि डिग्री से रेडियन में जाना है, अगर कोई चीज डिग्री में है, थीटा डिग्री में है, इसको रेडियन में लेके जाना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद पाई बाय 180. इसी तरह यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री. दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स रेडियंस. तो उसने नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली आप रेडियन में भी दे सकते हैं आंसर, यहाँ पर भी ठीक है, बट इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट इनटू डिग्रीज यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 180 ओवर पाई. इसको आप उससे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डिग्री में उसने उसका आंसर दे दिया. These were the two things required in the first numerical. Moving toward 305, this is again not a complex one. What is the minimum diameter? Now you are being asked to find D. ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से रिक्वायर्ड हो गया कि भाई डायमीटर बताया. मैंने आपको बताया था कि जिस तरह डायमीटर बढ़ता जाएगा शेयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू कम होती जाएंगी. पतली रॉड्स होंगी वो जल्दी क्रैक कर जाती हैं, पतली रॉड्स होंगी वो थोड़ी टॉर्शन ले सकती हैं, ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकती. डायमीटर अगर रॉड का ज्यादा होगा वो ज्यादा टॉर्शन शियर स्ट्रेसेस ले सकती है. सो नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर, डी फाइंड करें, ऑफ अ सॉलिड स्टील शाफ्ट. अगेन इट इज अ सॉलिड शाफ्ट गिवन दैट विल नॉट ट्विस्ट थ्रू मोर देन 3 डिग्री. यहाँ पर वो आपको दे दिया उसने एंगल ऑफ इंटरसेप्ट. ठीक है, उसने शुरू में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दी कि एंगल ऑफ इंटरसेप्ट इससे ज्यादा ना हो 3 डिग्री. इन अ 6 मीटर लेंथ ये भी आगे subjected to a torque, this is the value of T. What maximum shear stress is developed? पहली चीज diameter find करें. Second चीज कहता है what should be the maximum shear stress that you need be find करें. Value of G भी आपको given है. So now coming toward the first thing which is finding the diameter of this rod. So we already have this formula, theta is equal to torque length over jg. ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर जो थीटा होता है दैट थीटा इज इन, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज इन रेडियन. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या यूनिट दिया हुआ है, थीटा. थीटा के जो स्टैंडर्ड यूनिट इस इक्वेशन के अंदर यूज होते हैं दैट शुड बी इन रेडियंस. मगर न्यूमेरिकल के अंदर मुझे जो थीटा गिवन दिया है दैट इज इन डिग्री. So I need to convert this degree into radian. So first thing what they did in this formula is the conversion of थीटा इन डिग्री टू थीटा इन रेडियन. ये देखें पाई बाय 180 से उसने मल्टीप्लाई किया इस गिवन वैल्यू को 3 को जो हमें गिवन थी. सो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हुई. कमिंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड वी हैव टी एल जे जी. ठीक है, अगेन बिकॉज दिस इज अ सॉलिड शाफ्ट, फॉर सॉलिड शाफ्ट वी हैव द फॉर्मूला फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू पाई बाय 32 into d4. So this is the formula for G, polar moment of inertia. ठीक हो गया, this is the formula. Now next जो इसके अंदर ऊपर वाली क्वांटिटीज के अंदर आते हैं, then you have torque length. इसके आगे क्या कर रहा है, टॉर्क देखें किस यूनिट्स के अंदर आपको दिए हैं, 12 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, सो इफ आई वांट दिस वन, यहाँ पर सारी चीजें गीगा पास्कल और मेगा पास्कल, मैं हर चीज को मेगा पास्कल के अंदर लेके जाऊंगा, यानी इस स्ट्रेस को, यानी जो शेयर मॉडुलस है इसके यूनिट्स भी किस में रखूंगा, मेगा पास्कल के अंदर. जब मैं इसको मेगा पास्कल के अंदर रखूंगा तो मेरे लिए जरूरी है कि मेरे पास सारी फोर्सेस न्यूटन में हो और सारे डिस्टेंस मिलीमीटर में हो और सारे एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में हो. ठीक हो गया. नाउ इफ आई हैव द टॉर्क इन यूनिट्स ऑफ किलो न्यूटन मीटर, तो मुझे इसको किस यूनिट्स में लेकर आना है, न्यूटन में. सो आई विल फर्स्ट मल्टीप्लाई इट विद 1000. पहली चीज न्यूटन मीटर, मीटर की जगह मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में. सो आई नीड टू अगेन कन्वर्ट इनटू अनदर 1000. 2 दफा 1000 से मल्टीप्लाई किया. ठीक हो गया जी. ये होगी जी फर्स्ट टॉर्क के लिए, यानी टॉर्क के लिए मुझे 2 दफा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. कमिंग टुवर्ड द लेंथ, लेंथ अगर आप देखेंगे तो लेंथ इज अगेन गिवन इन यूनिट्स ऑफ मीटर. अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अनदर 1000. ठीक हो गया. तो यहाँ पर बेसिकली उसने क्या किया, 1000 को के ऊपर पावर ऑफ 3 लिख दी है. आप उसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं सिंपल इस तरह करके कि भाई 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगेन मल्टीप्लाई बाय 1000
मल्टीप्लाई बाय इसके आगे फोर्स लेंथ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये भी कर सकते हैं कोई टेंशन। जी निज़ार बताएं। सर ये कन्वर्जन सर ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 स्क्वायर सर ये दो नहीं समझ आया सर। मैं बताता हूँ, देखिए पहली चीज आपके पास क्या चीज है, टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू उधर हमें कितनी दी है, 12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, 12 किलो न्यूटन, ठीक है जी, मीटर। ये टॉर्क की वैल्यू हमें गिवन है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन मिलीमीटर के अंदर। ये किसमें, किलो न्यूटन मीटर में। तो किलो को कन्वर्ट करने के लिए मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 के साथ, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किलो खत्म हो गया, यहाँ पे न्यूटन रह गया, न्यूटन। आगे मीटर है, मुझे मीटर की जगह मिलीमीटर में लेके जाना है, तो मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 1000 से इसको अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस विल बी इन मिलीमीटर। ये मेरी टॉर्क तो कन्वर्ट होगी न्यूमरेटर के अंदर। अगेन मेरे पास आगे लेंथ भी है, लेंथ कितनी है, 6 मीटर। मुझे 6 मीटर को भी कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के अंदर, मैं अगेन मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1000, 2000 और 3000। तो देखें उसने 1000 की पावर 3 लिखा है और 12 को सिर्फ डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई किया है। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। इन द डिनोमिनेटर पार्ट कन्वर्ट हो गया तो फिर ये किस में आ जाएगा यूनिट यस, इसका अब इसके जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं दे आर इन न्यूटन मिलीमीटर, यानी अब आपके पास जो स्ट्रेस निकल रही होगी दैट शुड बी इन मेगा पास्कल। उसको भी हम आगे जाके जब फॉर्मूलाज में आएंगे हम गीगा पास्कल से इसको मेगा पास्कल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। Before midterm we already concluded that in order to convert things from gigapascal to megapascal, Yes, अगर आपने लेके जाना है you have to multiply those quantities with only 1000, यानी 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर लें तो उसकी कन्वर्जन हो जाती है 10 की पावर 3 से, ठीक है। ये भी आगे हम जाके देखें। तो जितनी भी आपकी शेयर की वैल्यू है, स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यू हैव टू टेक देम इन मेगा पास्कल इंस्टेड ऑफ गीगा पास्कल। गीगा पास्कल इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है जी। मेगा पास्कल, पास्कल इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स और मेगा पास्कल हम यूज करते हैं। अच्छा जी, डिनोमिनेटर के जब हम आते हैं तो मैंने आपको जे एक्सप्लेन किया, दैट पाई बाय 32 इंटू d4। जी की वैल्यू मॉडुलस ऑफ शेयर, इट इज अगेन गिवन इन गीगा पास्कल। तो उसने 83 के साथ, देखें 83 के साथ मल्टीप्लाई की है 1000 को, ठीक है। दिस 83,000, 83,000 कहां से है, 83 गीगा पास्कल को कन्वर्ट कर लिए मेगा पास्कल के अंदर, ठीक है। वंस यू पुट देम ऑल इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स यू विल गेट द डायमीटर। इस पूरी इक्वेशन में से डायमीटर निकालेंगे एंड द यूनिट्स विल बी इन मिलीमीटर। डिस्टेंस सिस्टम मैंने आपको बताया था कि मिलीमीटर में होंगे, फोर्सेस न्यूटन में होंगी और ये मिलीमीटर स्क्वायर में होंगे। This was the first part. The second part it says what is the maximum shear stresses. This is simple. हमारे पास एक solid shaft है, so solid shaft के लिए simple formula होता है that you need torque and d. What d that you have calculated in your previous calculations. ये वापस डालेंगे इसके अंदर, so you will get torque in units of megapascal because अब आपने यहाँ standard units use किए हैं। ये देखें torque को आपने convert किया किसके अंदर, किलो न्यूटन मीटर की जगह न्यूटन मिलीमीटर के अंदर, न्यूटन मिलीमीटर। तो सिर्फ 10 की पावर 2 क्यों लिया, यहाँ पर आपको बताएगा क्यों, ये 1000 को 2 से क्यों लिया, बिकॉज अब मेरे पास लेंथ नहीं है ऊपर, मैंने सिर्फ टॉर्क को कन्वर्ट किया। टॉर्क वाज गिवन इन यूनिट्स ऑफ किलो न्यूटन मीटर, तो मैंने क्या किया, किलो की जगह 1000 लिखा, न्यूटन इसी तरह ही आ गया, और मीटर की जगह मल्टीप्लाई बाय 1000 mm। तो 1000 दो दफा है बस, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ 1000 की पावर स्क्वायर लिया हुआ है, बाकी यूनिट जो है फॉर्मूले का 16 और टी जो है वो अप्लाइड टॉर्क आ गया। हाँ जी, 1000 के ऊपर एक क्यूब लिया और जो नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर 1000 के ऊपर स्क्वायर लिया हुआ। सो यू विल गेट टॉ मैक्स एंड दिस विल बी इन स्टैंडर्ड यूनिट्स मेगा पास्कल के अंदर, ठीक हो गया जी। वी हैव द लास्ट फॉर्मूला विच इज 306 एंड दिस अगेन इज नॉट अ टफ वन। This is 306 था कि नहीं, 306, हाँ exactly. This is more related to this industrial application जिसमें उसने पावर का जिक्र किया। तो वो कहता है कि स्टील मेराइन प्रोपेलर शाफ्ट 14 inch in diameter, this is the diameter of the shaft, ठीक है जी, and 18 feet long, this is the length of the shaft, used to transmit 5000 horsepower. Now this is the power given, industrial application आ गई, at 189 round per minute, this is the frequency, मैंने बता दी 189 राउंड पर मिनट्स में जा रही है आरपीएम में।
अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ P and you are given the value of this frequency, you are able to calculate the value of torque in unit of pound inches. ठीक है जी, जिसको मैं अभी दोबारा आपको दिखाता हूँ. लेट्स से इसको क्लोज करते हैं. I'll share it screen, new share, this one है. ये फॉर्मूला था जी आपके पास, that torque is equal to P over 2 pi F, and if you have them in standard units, तो ये आपके पास लास्ट फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, दैट द पावर इज इन हॉर्स पावर अगर यूनिट्स में दी हुई है, फ्रीक्वेंसी जो है इन राउंड पर मिनट्स में दी है, देन यू हैव टू डिवाइड देम एंड मल्टीप्लाई इट विद 63,000, 63 into 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द टॉर्क, एंड दिस टॉर्क विल बी इन यूनिट्स ऑफ पाउंड इंचेस. ठीक है जी. कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, इफ यू जस्ट वांट टू राइट इट, जस्ट राइट इट. लिखना चाह रहे हैं तो उसको लिख ले. मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करता हूँ. Dividing this power, which is in units of horsepower, with frequency, which is given in round per minutes, then multiply this with 63,000, you will get torque, okay, which will be in units of pound inches. I'll share the screen back. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि टॉर्क इज इक्वल टू P over 2 pi F उसने लिया उसको. ठीक है जी, which was the earlier formula. कौन सा फॉर्मूला उसने यहाँ से लिया ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको. जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे, दिस वाज द स्टैंडर्डाइज जिसको उसने कन्वर्ट किया. द अर्लियर फॉर्मूला वाज दिस वन, टॉर्क इज इक्वल टू P over 2 pi F. टॉर्क इज इक्वल टू P over 2 pi F. यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ पावर, आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है जी, दिस इज, ये देखें 5,000, और उसने उसकी यहाँ सारी कन्वर्जन की हुई है. ये जब एंड ये रिजल्ट आया था ना आपके पास, अगर आप इसकी स्टैंडर्ड ऊपर कन्वर्जन्स देखना स्टार्ट करेंगे कि ये कन्वर्ट किस तरह हुई, तो ये है टॉर्क इज इन यूनिट्स ऑफ पाउंड इंचेस. जो आपके पास पावर है, अगर वो हॉर्स पावर में हो और नीचे जो फ्रीक्वेंसी एंड राउंड पर मिनट्स में है, तो ये फॉर्मूला है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 396 इंटू 10 की पावर 3. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स कन्वर्जन ऊपर कन्वर्जन करने के तरीके दिए. आप बजाय ये करने के डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, उसको डायरेक्ट 63 इंटू 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू गो फ्रॉम दिस पार्ट. सो उसने यहाँ पे बेसिकली कन्वर्जन किया. आप जो लास्ट फॉर्म है उसको यूज कर सकते हैं जिसके अंदर टॉर्क लिया हुआ है, कि आपने टॉर्क इन पाउंड इंचेस निकाले ना, तो बजाय इसके कि ये कैलकुलेशन 396 इंटू 1000 करें, आप सिंपल क्या करें कि अपनी स्लाइड के अंदर वापस आए. जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इफ यू वांट द टॉर्क टू बी कैलकुलेटेड इन पाउंड इंचेस, आपने क्या करना है कि जो पावर आपको गिवन है, मेक श्योर इट इज इन हॉर्स पावर. ठीक है, HP में हो जो कि हमें गिवन थी. फ्रीक्वेंसी RPM में हो जो कि हमें गिवन है. आपने दोनों को डिवाइड करना है, उसको 63,000 से मल्टीप्लाई कर लेना है. जब आप इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 63,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द टॉर्क इन यूनिट्स ऑफ पाउंड इंचेस. वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया होगा. ठीक हो गया जी. मैं इसको वापस लेकर आता हूँ. वी ऑलरेडी हैव दिस हॉर्स पावर. ये देखें 5,000 हॉर्स पावर के अंदर दी हुई है, और ये भी RPM में दी है. दोनों को डिवाइड करें एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 36 इंटू 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट द टॉर्क इन पाउंड इन यूनिट्स. ये क्लियर है जी. Second वो कह रहे हैं determine the maximum shearing stress, again because this is a solid shaft, so we have again the formula 16 into T. टॉर्क आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पाउंड इंचेस के अंदर. डायमीटर जो है वो आपको स्टार्टिंग अंदर मेरीन का ये दिया है 14 इंच डायमीटर. दिस वाज द डायमीटर. यू विल यूज दिस डायमीटर हियर. दिस विल गिव यू maximum shear stresses in units of PSI. I hope so. These are the three numericals that you have to do in your classworks. Then rest of the numericals they are homework. उनको complete करें and then submit them electronically by scanning them. If you have any questions, just raise your hand ताकि one by one उनको address कर सकें उन चीज़ों को.